लाइक आई वाज सिलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर इंटर्नशिप। यूएसए स्टूडेंट्स में मतलब मोस्टली यूएस में होता था, बट लास्ट ईयर दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया एज वेल। तो इट वॉज ऑफ कैंपस। आई अप्लाइड ऑन करियर्स पोर्टल। जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब माई फादर इज इन आर्मी, लाइक ही इज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सो आई हैव सीन हिम वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ, लाइक 30 years ही हैव सर्व्ड टू कंट्री। सो वो चीज़ आपको एक डिसिप्लिन देती है। What do you think was the weightage of DSA? What was the weightage of development? मैंने डेल्टा कोर्स लिया था, उससे मैंने वेब डी स्टार्ट किया। इट वॉज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो टेक्नोलॉजी के और टूवर्ड्स हुआ वो विद हेल्प ऑफ डेल्टा हुआ। Kanika, can you tell us more about the kind of projects that you had in your resume? What was the tech stack did you pick? So at that time I had 2 projects. I think CGPA plus, क्योंकि Microsoft sees that companies देखती है, क्योंकि that is a way to reflect your hard work and consistency. Hi everyone, we recently launched Sigma X for becoming an AI powered software engineer, जिसके अंदर हम अपनी complete placement preparation के लिए DSA, AI powered full stack web development and quant aptitude तीनों को ही in depth cover करने वाले हैं। So for all the interested students, there is a special student discount जो रहेगा 10th August शाम के 9 बजे तक। The link for enrolling in the batch is in the description box, and Sigma X के अंदर there are going to be major upgrades including the one for AI integrated development, जिसके अंदर हम अपने RAG systems हो गए, Hugging Face हो गया, LangChain हो गया, different AI tools हो गए and a lot more को cover करने वाले हैं। So all the details are already there in the launch video। हमारी classes start होंगी 19th August 2026 से। See you in classes। ठीक है कनिका, सबसे पहले तो we welcome you. You have gotten selected for 2 internships, one in Microsoft, one in Wells Fargo. So let's start with the hiring process of both of these companies. We'll start with Wells Fargo. So tell us what was the selection criteria of Wells Fargo? How many rounds were there in the interview process? And what was each round about? So Wells Fargo had 3 total rounds. Like first was OA round, next 2 were technical rounds, and third one was very basic HR round. And Wells Fargo had a criteria, 7.5 plus CGPA were only allowed, and circuital branches were allowed. So that was the shortlisting criteria. And then we had one OA, जिसमें it was of 90 minutes, and it had everything like aptitude था, then it had 2 DSA questions. I think mostly were array based, so basic DSA का questions थे, not advanced DSA topics. Then we had finance related questions as well, and SQL के भी 1-2 questions थे। मतलब it was a overall wholesome OA. And then after 1 to 2 weeks we got to know that further students are shortlisted for further process. So there were 2 interviews में first interview was online, like मतलब they were onlinely present, and then जो second interview था it was physical, मतलब the HR was there. तो फर्स्ट इंटरव्यू में दे स्टार्टेड विद माई DRDO इंटर्नशिप, माई माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल। उसके बाद दे गेव मी 1 सबस्ट्रिंग क्वेश्चन विच वॉज बाइनरी सर्च प्लस सबस्ट्रिंग समथिंग, एंड उसके बाद दे गेव मी SQL क्वेरीज, मतलब सब क्वेरीज, एंड उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन था। एंड देन फिर थोड़ा बहुत इंटर्नशिप के बारे में पूछ के द इंटरव्यू गॉट एंडेड, एंड देन फिर उसके 1 to आई थिंक 3 to 5 मिनट्स बाद ही आई गॉट टू नो दैट आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। वो फिजिकल राउंड था, मतलब उसमें फेस टू फेस राउंड था। सो शी आस्क्ड मी अबाउट माई OS, मतलब पहले OS के क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने मोटिवेशन बिहाइंड इंजीनियरिंग एंड व्हाई यू वांट टू बी इन दिस फील्ड, एंड उसके बारे में पूछा। एंड देन फिर उसके बाद बहुत मतलब रेज्यूमे बेस्ड इट वाज क्वेश्चन, मतलब रेज्यूमे बेस्ड था वो वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा HR राउंड था, बट दैट वाज मोस्टली लाइक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही थे, एंड वो बहुत बेसिक, मतलब योर नेम एंड योर प्रेफरेंस फर्स्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेल्स फार्गो। ठीक है। And now tell us about the selection process of Microsoft. How many rounds were there and what was asked in each round? Okay, so Microsoft used to conduct one program through which they used to like select second year students, but फिर वो stop हो गया। Then ये जो like I was selected for Microsoft Explorer internship। USA students में मतलब mostly US में होता था, but last year they introduced it in India as well। तो it was off campus. I applied on careers portal, and first round was resume shortlisting. There was no OA. First round was resume shortlisting. उसके बाद हमारे 2 technical interviews हुए, and then I got to know that I'm selected. So the interviews were based on everything, like वो उसमें DSA भी था, dev भी था, and oops के भी questions थे। तो my first interview was supposed to be a 45 minutes, but उसमें कुछ technical issues के कारण it was mostly of 25 to 30 minutes। तो वही I want to suggest कि मतलब technical issues भी आते हैं, but then interviewers are also very kind कि वो समझ जाते हैं फिर उस हिसाब से आपके questions मतलब questions they ask। तो the interview started with 1 DSA questions जो कि array and interval overlapping पे था, plus sorting something उसमें reduce हो रहा था। उसके बाद he asked me about my DRDO
प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, तो आई टुक माई DRDO प्रोजेक्ट। मतलब नॉट पर्टिकुलर क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, बट मैंने उसके इंस्पायर्ड एक अपना प्रोजेक्ट बनाया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ही आस्क्ड मी सम ऊप्स क्वेश्चंस एंड फिर थोड़ा बहुत रिज्यूमे के बेसिस पे करके माय इंटरव्यू एंडेड। एंड देन विद इन 1 to 2 hours I got to know that I'm shortlisted for next round, and my next round is just in like within 5 minutes. तो फिर मैंने वही प्रिपेयर किया, एंड देन फिर इंटरव्यू स्टार्टेड विद मोर लाइक कि ही वाज आस्किंग माय फीडबैक फॉर द फर्स्ट राउंड। तो मेरा तो फर्स्ट राउंड आई वाज वेरी मच दैट कि मतलब कैसा गया, बिकॉज टेक्निकल इशू भी था, बट देन द फीडबैक वाज गुड। एंड उसके बाद उन्होंने रिज्यूमे मेरा पूरा पढ़ा, एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद माय ग्रेड्स, लाइक 12th में भी आई गॉट 98.4 इन PCM, तो ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद ग्रेड्स। एंड देन फिर उन्होंने स्टार्ट किया विद अगेन इंटर्नशिप एंड व्हाट वाज माय मोटिव बिहाइंड द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव मेड, व्हाई टेक स्टैक मैंने पर्टिकुलर चूज किया। उसके बाद उन्होंने DSA क्वेश्चन दिया, केडेंस एल्गोरिदम पे था वो मोस्टली, एंड उसके बाद ही गेव मी सम रैंडम क्वेश्चंस ऑफ ऊप्स एंड DBMS के थोड़े क्वेश्चंस पूछे, एंड देन फिर रिज्यूमे का ही थोड़ा और पूछा, एंड या द इंटरव्यू गॉट एंडेड। उसके बाद या विद इन सेम वीक आई गॉट टू नो दैट आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटर्नशिप। फिर 2-month internship was in Hyderabad campus. Okay, and how was your experience in the It was Microsoft amazing, internship? like to be with brilliant minds and to see actually कि क्या impact होता है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आप actual में apply करोगे, तो it was amazing, and yeah, so it was fabulous, and the campus is really beautiful and big, so yeah. Great. So, Kanika, can you tell us more about the kind of projects that you had in your resume? What was the tech stack did you pick? And how many projects did you mention in your resume? Okay, so at that time I had 2 projects. One was so at the end of my first year I did intern with DRDO. तो उस टाइम पे टेक स्टैक जो मेरा था वो ML प्लस क्यू लर्निंग एल्गोरिदम पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एंड उसका इंटेंट आई फेल्ट कि वो बहुत ब्रॉडर आर्मी वे में यूज हो सकता था, इसलिए आई फेल्ट कि उसे मैं रखना चाहूँगी। एंड देन उसके बाद मेरा एक मर्न प्रोजेक्ट था जो कि मैंने डेल्टा से ही बनाया था, मतलब आपके थ्रू ही मैंने उससे इंस्पायर होकर, एंड देन मेरा एक वो प्रोजेक्ट था। तो या तो मर्न स्टैक था एंड ML प्लस क्यू लर्निंग। ठीक है. And what exactly did the interviewers ask related to the projects? Projects were like कि what was your intent behind the project? I think you should be very much clear कि why you did that. क्योंकि why every time अगर आपका why clear है तो आप actually clarity अपनी बता पाओगे and अपनी clear thinking convey कर पाओगे इंटरव्यू को। तो they were mostly focused on why of everything, like why I picked up a particular tech stack and why not LLM, because AI ML भी चल रहा है, तो that is something you should know कि मतलब why you are choosing a particular project. ठीक है. Also tell us about your entire college journey till now. Like what did you study in your first year, in your second year and in your third year? So my first year started with again YouTube पे आपके बहुत सारी वीडियोस देखे, तो उससे इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया DSA रैंडम, मतलब YouTube प्लेलिस्ट से ही आई स्टार्टेड। उसके लिए आई डिडंट बाय एनी कोर्स। उसके बाद आई स्टार्टेड, मतलब वो कंसिस्टेंसी वाज वेरी मच ब्रेकेबल, मतलब बीच बीच में आई वाज, क्योंकि मिड सेम भी था एंड एंड सेम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, तो वो मैंने फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम मोस्टली मेरा DSA था। फिर मैंने डेल्टा कोर्स लिया था एंड उससे मैंने WebD स्टार्ट किया, एंड फिर उसके बाद मेरा वही माइक्रोसॉफ्ट में आई गॉट सेलेक्टेड एंड इंटर्न के थ्रू फिर मैंने वही इंटर्नशिप करी। सो वो मेरा सेकंड ईयर में था। सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर DSHOR डेस असिस्टेंट एजुकेशन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो दैट इज अ प्रोग्राम फॉर 6 months ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आई थिंक उससे भी बहुत एक एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ भी वी हैड अ हैकाथॉन, मतलब प्रॉपर प्रोजेक्ट था, एंड उसमें आवर टीम गॉट फर्स्ट, मतलब देयर वाज जूनियर्स, मतलब एक सीनियर का कोहॉर्ट था, एक जूनियर का कोहॉर्ट था, एंड आवर टीम वाज द फर्स्ट इन जूनियर। तो वो वाला वहाँ से फिर मेरा एक फेज, एक मुझे मोटिवेशन मिला कि ओके यू कैन इम्पैक्ट पीपल। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने और DSA ट्राई किया अच्छे से करने का, शीट्स मतलब यूट्यूब पे जो आपकी शीट्स थी वो सारी सॉल्व करी। उसके बाद या सो दैट वाज ऑल अबाउट माय DSA, एंड डेव मैंने मोस्टली सेकंड ईयर में किया। सो टिल द इंटर्नशिप इतना मैंने किया था। ठीक है. So in your selection process for both the companies, what do you think was the weightage of DSA? What was the weightage of development? What was the weightage of computer science fundamentals? And then other things like quant aptitude, communication skills, GPA. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स लाइक प्रायोरिटी तो आपकी DSA, बिकॉज जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए फर्स्ट राउंड एंड OA एंड उसके बाद फर्स्ट टेक्निकल राउंड इज मोस्टली अबाउट DSA, सो दैट शुड बी अ पर्टिकुलर प्रायोरिटी कि वो तो आना ही चाहिए। उसके बाद आई फील कि डेव आपको काफ़ी आना चाहिए, क्योंकि अब जो सिनारियो हो गया है SD इंटर्नशिप्स में, तो यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट जो भी आपने DSA में लॉजिक बिल्डिंग करी है, तो डेवलपमेंट, एंड उसके बाद CS फंडामेंटल्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर डिसिप्लिन एंड योर
कंसिस्टेंसी. So when you started preparing for placements or when you started studying, were there any myths in your mind that got cleared up over time? या कि मतलब बहुत टफ है डीएसए एंड आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड होना चाहिए आपको. बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपका इंटेंट क्लियर है एंड यू आर हार्ड वर्किंग इनफ एंड आप कंसिस्टेंट हो, तो मतलब इट फील्स लाइक कि इंजीनियरिंग को सब ऐसा कोर्स मतलब देखते हैं, बट इंजीनियरिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे होते हो. सो दैट इज समथिंग वो मुझे लगा कि हाँ, मतलब इंजीनियरिंग इज अ प्लेटफॉर्म टू मतलब impact a lot of people directly. So that is something. Okay, what is your current CGPA? It's 9.5, like 9.49. 9.5. Yeah. So how did you balance your academics along with your placement internship prep? So mostly तो मेरा DSA and Dev ही रहता था, and mid sem के 1 to 2 weeks before मैं पढ़ना start करती थी, and end sem के भी almost 2 to 3 weeks पहले ही I used to study. तो I think बहुत balance वे में आप कर लेते हो अगर आप time management अच्छे से मतलब properly time को manage करो, तो I think it's very easy to maintain 9+ CGPA. Okay, ठीक है. So when you applied to DRDO, I think this was the first internship Yeah. that you did. So what kind of skills did you have in your resume before you applied for the first internship? या सो उस टाइप पे मेरे इतने स्किल्स तो नहीं थे, मतलब डेवलपमेंट आई डेंट मतलब बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं किया था, बट आई फील लाइक कि मैंने ग्रेड्स को मतलब एजुकेशन सेक्टर इज समथिंग मैंने जो टॉप पे प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास इतना चीज़ें रहती हुई नहीं है. तो मैंने एजुकेशन प्लस माई CGPA एंड ऑल ऑफ द CS फंडामेंटल्स दैट आई स्टडीड टिल देन, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए. एंड या प्रोजेक्ट्स एज सच मेरे पास इतने ब्रॉडर वे में नहीं थे, तो दैट इज समथिंग आई मेंशन इन माई रेज्यूमे. सर इट वाज वेरी बेसिक डॉक resume that आपने एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करी थी फॉर DRDO, सो वही आई यूज्ड उस टाइम ठीक है. And what was the hiring process for DRDO? हायरिंग प्रोसेस वाज मतलब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना था. मैंने ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस आल्सो आई अप्लाइड. तो या मतलब फर्स्ट राउंड वाज, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से सिर्फ मैं ही थी, तो रेज्यूमे प्लस मतलब दे आस्क्ड लिटिल बिट अबाउट योर इंटरेस्ट एंड व्हाई यू वांट टू बी इन दिस करियर एंड ऑल, तो वो चीजें दे आस्क्ड. ठीक है. Okay. So what was your parents' reaction when you got your first internship? They were very happy, like मतलब I still remember it was 7 PM and I got a mail कि आप shortlisted हैं, आप अपने अपने preference भेज दे. And I told mama and she was like, क्योंकि उन्होंने what I feel is कि why like I also had lows in my journey, but what I feel है कि जब आप अपने parents को देखते हो कि वो आपके लिए इतना struggle कर रहे हैं, मतलब my father is in army, like he's an retired army officer, so I've seen him working throughout his life, like 30 years he has served to country, so वो चीज़ आपको एक discipline देती है. एंड आई फील लाइक कि हाँ, वो उनको ऐसा लगा होगा कि उनका सेक्रीफाइस वाज वर्थ इट. सो दैट इज समथिंग आई फील लाइक. या Great. So you have any younger siblings? नो, आई हैड एन एल्डर Elder. सिबलिंग. या Okay, good. So you will be doing your Wells Fargo या internship. दिस समर. Okay. Do you feel like you had any wow factor in your resume that contributed to you getting shortlisted? Yeah, I think first of all I was selected for DESIS, तो वो वाली चीज़. And other than because everyone nowadays have DSA and development and projects, what I feel like is कि DRDO की internship plus I think my grades, क्योंकि उस टाइम पे इतना मतलब किसी को कुछ नहीं आती है स्किल. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप बहुत न्यू वे में चल रहे होते हो. आई थिंक CGPA प्लस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सीज दैट कि व्हाट आई फील इज कि कंपनीज देखती है, क्योंकि दैट इज अ वे टू रिफ्लेक्ट योर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, कि आप अच्छे से बैलेंस चीज़ों को कर पाते हैं, आप अडेप्ट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करना. तो दैट इज समथिंग was wow factor of my resume. So you have gotten selected and done multiple internships, including Microsoft, Wells Fargo. So what were the top 3 things that helped you get selected? First is DSA, of course, then development and my I think my orientation towards CS fundamentals, because हमारे सेमेस्टर्स एग्जाम्स में भी वो सब होता है. तो आई रेड अ बुक, मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी थी उस टाइम पे. तो आई फील लाइक कि हाँ, वो चीज़ आपको एक ओरिएंटेशन दे देती है कि टेक्नोलॉजी क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो या दैट वर द 3 थिंग्स. ठीक. एंड माई ग्रेड्स, लाइक मतलब CGPA तो ऑफकोर्स, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है, तो योर रेज्यूमे इज अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ योर जर्नी. दैट इज समथिंग. अच्छा, tell me about any other additional extra strategies that you use during the preparation time. आई फील कि बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, मतलब DSA दे डू कि मतलब बस क्वेश्चंस कर लिया, बट
व्हाट आई फील इज कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब डीशा का भी मेरा इंटरव्यू था तो उससे 2-3 दिन पहले मैंने बस वही नोट्स रिवाइज, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या सोच के उस टाइम पे क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि आप भूल जाते हो। सो वहाँ पर आई यूज टू राइट माई अप्रोच की ओके दैट वाज माई अप्रोच। वो चीज़ आपको एक बैलेंस दे देती है कि ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, आपने इस वे में सोचा था। बिकॉज इंटरव्यू में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे अप्रोचेस आपके पास आने लगते हैं कि आप रूट भी लगा सकते हो, ऑप्टिमाइज, तो कौन सा लगाना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो दैट इज समथिंग कि अगर आप अपनी मिस्टेक्स लिखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट वीकली, मंथली, कि आप कैसे सही चल भी रहे हो कि नहीं, मतलब आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड ट्राई टू कनेक्ट विद सीनियर्स आई फील। एंड अब तो मतलब लिंक्डइन इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो या मतलब ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, ट्राई टू बी मोर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग एंड या How many companies do you think you would have applied for, both in on-campus, off-campus? I have applied like for quite 5 to 6 companies, Okay. off campus and on campus. What do you think was the most intimidating part of the entire hiring process in all of the internships that you've applied for? I think OA, because OA is like first round and वो एक next level question होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि OA में they also understand कि आप बहुत अभी start ही कर रहे हैं, तो try to be honest and जितने questions even if आपको brute force आ रहे हैं तो आप वही से कर दो, क्योंकि बहुत सारे questions ऐसे होते हैं वो दिखते बहुत ज़्यादा hard हैं, बट अगर आप brute force लगाओ तो कुछ test cases you can pass। तो that is something I feel कि OA most important है, and plus resume shortlisting, क्योंकि वही से आपका एक बेस तैयार होता है। एंड फिर आप इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज में तो इट्स अ वे यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, दे विल इवेंचुअली गेट टू नो कि आपको कितना आता है एंड आपकी क्लैरिटी कैसी है। बट OA में देयर इज जस्ट मशीन, एंड तो दैट इज समथिंग आई फील कि आपको OA एंड उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करना चाहिए। OA के लिए प्रिपरेशन प्रैक्टिस कैसे की आपने? कॉन्टेस्ट मतलब मैंने तो लीड कोड बहुत देर से स्टार्ट किए थे। दैट इज समथिंग ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी आप, अगर आपका नहीं भी हुआ है DSA तो भी आप स्टार्ट कर दे देना, क्योंकि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी एंड धीरे धीरे यू फील लाइक ओके क्वेश्चंस हो रहे हैं, पहले ब्रूट से होते थे, देन यू कैन ऑप्टिमाइज ऑन द स्पॉट। तो कॉन्टेस्ट तो डेफिनेटली। एंड मेरा CP का इतना ओरिएंटेशन नहीं था CP टूवर्ड्स, बट आई थिंक अब जो सिनेरियो हो गया एंड OA का जो लेवल हो गया, आपको CP के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज समथिंग CP विल डेफिनेटली हेल्प यू इन OAs, cracking OAs. So abhi summer vacations are going to start. So do you have any advice for students who will be sitting for their internship, for their placement interviews? I think try to practice as much DSA as you can, क्योंकि DSA is definitely going to be a game changer in your journey. So that is something I feel कि DSA करते रहना चाहिए। and projects को आप, जितने projects आपने बना लिए हैं उनको आप अच्छे से इंटेंट समझ लीजिए उसका, कि आपने टेक स्टैक पर्टिकुलर क्यों चूज किया है एंड उसके अलावा और कौन से अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। So that is something I will suggest to my juniors or those who are going to sit in internship drives. What is the tech stack that you used in Microsoft? C Sharp. So it was backend and C Sharp. So what was the role of Delta in your journey? It was a very big role because development is something जो आपको interesting, आपको एक interest देता है towards technology. तो I feel like कि Delta से I got an मतलब it was a door to me. मतलब आई फील कि उससे मुझे समझ में आया कि डायरेक्टली मैं क्योंकि ह्यूमंस के साथ ये होता है जब उन्हें चीज़ें दिखती हैं कि ओके आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो दैट इज समथिंग, मेरा इंटरेस्ट जो टेक्नोलॉजी के और टूवर्ड्स हुआ वो विद हेल्प ऑफ डेल्टा हुआ। एंड डेफिनेटली मेरे प्रोजेक्ट्स में मैंने डेल्टा के ही प्रोजेक्ट्स डाले हैं विद सम ऑफ माई फीचर्स मैंने उसमें ऐड करके। तो दैट इज समथिंग आई फील कि डेल्टा का एक अच्छा रोल रहा है विद, क्योंकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ही मेरे मेन रोल्स थे, तो उसमें आई फील कि डेल्टा डेफिनेटली हैव प्लेड अ बिग रोल। ठीक है। Is there anything else that you would like to add? आई फील कि हार्ड वर्क करते रहिए, बी कंसिस्टेंट, बी वेरी क्लियर विद योर व्हाई यू वांट टू डू इंजीनियरिंग को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो आपको एक वो लगेगा कि हाँ भाई आप कंट्री को ही सर्व कर रहे हैं एट द एंड, क्योंकि वो डेफिनेटली फाइनेंस में भी हेल्प होता है। तो दैट इज समथिंग आई फील कि जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो हार्डवर्क करते हुए, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन, मतलब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड दैट व्हाई यू वांट टू डू इट, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल ऑफ देयर लाइफ जस्ट टू सी यू एट सम प्लेस। सो दैट इज समथिंग आई फील कि आप हार्डवर्क करते रहिए, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, बट हार्डवर्क का डेफिनेटली कभी ना कभी रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता है। Your parents are from an army background, so you have had a very disciplined life. Yeah, so my father is very disciplined till now. तो उनसे मतलब आई एम so much inspired
इंस्पायर्ड कि इस एज में भी सो डिसिप्लिन कि अगर 5 AM उठना है तो उठना ही है। तो दैट इज़ समथिंग उसने बहुत वो डिसिप्लिन ने मेरे लाइफ में बहुत रोल प्ले किया है, क्योंकि स्टार्टिंग से आई हैव सीन हिम ग्रिलिंग एंड मतलब सर्विंग कंट्री, एंड उनका एक इंटेंट था कि व्हाई ही वांट्स टू सर्व कंट्री। सो दैट इज समथिंग माय फादर, माय मदर्स सैक्रिफाइसेस, बिकॉज शी सैक्रिफाइस्ड हर ड्रीम्स फॉर मी। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई फील कि इसलिए आई वांट टू डू समथिंग, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपका बहुत साथ दिया है। एंड ऑफ कोर्स माय ब्रदर्स, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि ओके ऐसे करना है। अगर मुझे कभी कोई डाउट्स भी आते थे तो मैं उनसे पूछती थी। तो दैट इज समथिंग, दीज 3 figures हैव डेफिनेटली प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ। सो या, and of course college seniors and teachers like you, it's so grateful to be in this era, क्योंकि आपके पास इतने सारे resources हैं and you have so many people to talk to and to get inspired from. So that is something, yeah. You have a very positive attitude, Kanika. Thank you. And once again, congratulations. Thank you so much. for all the offers that you have. तो आई थिंक कनिका की जर्नी से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम सब लेके जाएंगे और उनको अपनी जर्नी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। द 2 biggest lessons being the importance of hard work and the importance of discipline. तो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन के साथ अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी भी एक एज अ रिजल्ट हमारी जर्नी के अंदर आएगी। एंड ऑल्सो आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली ऑल्सो, Yeah. स्टार्टेड इन योर फर्स्ट ईयर, दैट वाज आल्सो वेरी गुड एज दैट यू हैड, Yeah. जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा अपस्किल करने के लिए। सो वो चीज़ भी आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो अपनी जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hurt.